শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 10 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 12.10 অনওয়ার্ডস। আচার্যের মত যেই সেই মত সার, আচার্যের মত যেই সেই মত সার, কারো আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই তো অসার। कार आज्ञा लंघी चले से ही तस असार। हाँ, तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, साक्षात महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य का लीला के उनका तत्व के बारे में और उनका शाखा प्रशाखा के बारे में भी आलोचना होगा। सभी भक्तों अगला 45 मिनट्स प्लीज वीडियो ऑन करके प्रयास कीजिए क्लास अटेंड करने के लिए। पूरा 100% कंसंट्रेशन होगा जब आपका वीडियो ऑन रहेगा। वीडियो ऑफ रहेगा तो मन यहाँ वहां भटकेगा। आचार्येर जे मत সেই মতই হচ্ছে সার। যে সেই মত লঙ্ঘন করে সেই তৎক্ষণাৎ অসার হয়ে যায়। এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার মত ব্যক্ত করেছেন। যিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাকে রূপ দান করতে সক্ষম হন, কিন্তু যে গুরুদেবের আদেশ অমান্য করে বিপদগামী হয় সে সম্পূর্ণভাবে অসার হয়ে যায়। असार हो जाए। क्यों ये असार असार बार बार बोल रहे हैं? ये चीज यहाँ क्यों बोला कि जो गुरुदेव का बात नहीं सुनता है वो असार हो जाता है? क्यों बोल रहे हैं ये सब? अभी कबीरदास गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं हिरण्मय ग्रंथ को? और दो है ना, दो ब्रांच था, एक फॉलो किया और एक गुरुदेव का वाणी आचार्य लोग का वाणी फॉलो नहीं किया तो असार हो गया। असार माने वो ब्रांच से कुछ निकला ही नहीं। भक्त समझ में आ रहा है सबको? অসারেরও নামে ইহা নাহি প্রয়োজন, আসারে নাম ইহা নাহি প্রয়োজন, ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন, ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন, ধান্য রাশি মাপে জইছে পাতনা সহিতে, ধান্য রাশি মাপেছে পতে না সহিতে, পশ্চাতে পাতনা উড়াইয়া সংস্কার করিতে, পশ্চাতে পাতনা উড়াইয়া সংসার করিতে। যারা অসার হয়ে বসেছে, ফিরছে, যারা অসার হয়ে বসেছে তাদের নাম উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমি তাদের কথা উল্লেখ করলাম কেবল সার্থক ভক্তদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য। समझ में आया? প্রথমে ধানের সঙ্গে শুষ্ক খড়কুটো মিশ্রিত থাকে, কিন্তু পরে হাওয়ার সাহায্যে ওই খড়কুটোগুলো উড়িয়ে ধান থেকে তা আলাদা করা হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখান থেকে যে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গৌড়ীয় মঠের সদস্যদের বেলায়ও এই পন্থাটির প্রয়োগ প্রযোজ্য। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বহু শিষ্য রয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কে সার এবং কে অসার তা বোঝা যায়। কে কতখানি নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করছেন তার মাধ্যমে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভারতবর্ষের বাইরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। প্রকটকালে তিনি তার শিষ্যদের ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাণী প্রচার করার জন্য, কিন্তু তারা কৃতকার্য হতে পারেননি, কেননা বিদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তারা নিষ্ঠা পরায়ণ ছিলেন না। बोले क्या विदेश में कौन महाप्रभु का नाम कीर्तन करेगा, कौन महाप्रभु को पहचानते ही नहीं, विदेश नहीं हो पाएगा, प्रभुपाद नहीं हो पाएगा, भरोसा नहीं। তারা কেবল বিদেশে যাওয়ার খ্যাতি অর্জন করে ভারতবর্ষে বিলেত ফেরত প্রচারক রূপে পরিচিতি লাভ করার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। হরি বল। क्यों विलेज में किया था? ओ फॉरेन रिटर्न प्रचारक सब बोलेगा, अरे फॉरेन रिटर्न है।
গত 80 বছর ধরে প্রভুপাদজি বললেন বহু স্বামীজি বিদেশে গিয়ে প্রচারের নামে নানা রকম ভণ্ডামি করেছে, কিন্তু কেউই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করতে পারেননি। তারা ভারতবর্ষে ফিরে এসে কপট প্রচার করেছে যে ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত সাহেব মেমদেরকে তারা বৈদান্তিককে পরিণত করেছে অথবা কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করেছে, এবং তারপর ভারতবর্ষে চাঁদা তুলে आराम जीवन यापन करছে। ठीक है, क्योंकि वो कौन क्रॉस चेक करेगा? आकर बोला मैंने उधर 10,000, मैंने उधर 5,000, मैंने उधर 2,000 शिष्य बनाया, अभी थोड़ी कोई जाकर चेक करने जाएगा विदेश में। तो अभी बोला प्लीज अब थोड़ा डोनेशन दीजिए, इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। হাওয়া দিয়ে যেমন শুষ্ক খড়কুটো থেকে ধান আলগা করা হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে বোঝা যায় যে যে যথার্থ ভগবানের বাণী প্রচারক আর কে তা নয়। কে যথার্থ भगवान प्रचारक वाणी प्रचारक के ना कौन एक्चुअली जो भगवान गुरुदेव का वाणी मानकर प्रचार किया और जो गुरुदेव का वाणी आचार्यों का वाणी नहीं एक्सेप्ट किया, वो क्या हो गया? असार हो गया। जैसे हमको याद आ रहा है, अभी इसी प्रसंग में याद आ गया, कल ही मैंने सुना था कि परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज वो चाहते हैं, उन्होंने खुद बोला है, हम चाहते कि हमारा सब शिष्य लोग भक्ति वैभव करें। फिर उन्होंने क्या बोला, तो उनका जो सेक्रेटरी है वो बोल रहा था कि गुरु महाराज को सब भक्ति वैभव ऑनररी डिग्री देना चाह रहे थे। ऑनररी डिग्री समझ रहे हैं अभी ऐसे ऑनररी डिग्री महाराज ऑनररी डिग्री, लेकिन फिर गुरु महाराज ने बोला नहीं, मेरे को ऑनररी डिग्री नहीं चाहिए, मैं भक्ति वैभव पढ़ूंगा और फिर डिग्री लूंगा। और उन्होंने पूरा भक्ति वैभव कोर्स करके इस उम्र में इस शारीरिक स्थिति में परीक्षा दिया, पास हुआ और फिर डिग्री मिला। यानी इमेजिन इस परिस्थिति में, शारीरिक परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया। और उनका दृढ़ इच्छा है कि वो सभी शिष्य लोग भक्ति वैभव कोर्स करें। ये मैं क्या बोली माता जी? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुझे इसी से रिलेटेड पूछना था कि लाइक महाराज आप कह रहे इस स्थिति में ही सच ए ग्रेट प्रीचर, व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाई शुड बी वैभव का मतलब क्या है? इज इट जस्ट मतलब इतने बड़े प्रीचर थे महाराज सब कुछ, तो फिर क्यों भक्ति वैभव की जरूरत पड़ी करने की? हाँ, जस्ट सो दैट ही बिकम्स अ सोर्स ऑफ। एक तो उद्देश्य ये है कि जो चीज आप नहीं किया वो चीज आप कैसे लोगों को बोल सकते हैं। देखो हम लोग तो आजकल इतनी क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, भक्ति वैभव ये एक माध्यम है भक्त लोग को भक्ति से एंगेज करा के रखना, ये भी तो एक माध्यम है। भक्ति वैभव कोर्स 1 साल चलेगा, लोग उसका अध्ययन करेगा, परीक्षा देगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत दृढ़ता से उसको पढ़ना पड़ेगा। और ये प्रचार करने के लिए खुद को भी तो आप खुद अगर नहीं करेंगे, दूसरों को बोल रहे तो वो तो हल्का प्रचार होगा। तो एक उद्देश्य तो यही है कि महाराज खुद भी उसी लिए किया। I'm surprised and shocked to hear this कि इतने बड़े प्रीचर इतना अच्छा वो इनका कोई दरकार नहीं। मैं तो बोला ना, उनको ऑनररी डिग्री मिल रहा था। ऑनररी डिग्री समझते आप ना? हाँ, यस यस आई नो। नहीं, हम ऑनररी डिग्री नहीं लेंगे, हम खुद करेंगे, परीक्षा देंगे। नहीं तो लोग बोलेगा ना, अरे महाराज तो बोल रहे हैं महाराज भी भक्ति वैभव, लेकिन महाराज को तो ऑनररी मिला, हम लोग को तो ऑनररी नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे भी कोई बोल नहीं पाएगा। एग्जाम्पल सेट करने के लिए देखिए, विपरीत देखिए, महाराज इस शारीरिक स्थिति में जो व्हील चेयर में घूम रहा है वो कभी भक्ति वैभव करेगा? यहाँ हट्टा कट्टा लोग बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, यहाँ हट्टा कट्टा लोग मना कर रहे हैं। हम लोग अभी क्लास में कुछ 2-4 भक्तों को नियुक्त किया है, सब फोन करके सबको कन्विंस करा रहे हैं। हट्टा कट्टा लोग बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, अभी हाथ पर चल रहे हैं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा बुरा हो गया, हमारा दिमाग में घुसेगा नहीं, इस उम्र में परीक्षा दूंगा मैं। तो देखिए महाराज का देखिए इस शारीरिक स्थिति, और हमको तो नहीं लगता महाराज से ज्यादा उम्र कोई इधर है। महाराज का कितना चल रहा है अभी उम्र, किसी को मालूम है? 77 यहाँ 77 कोई है।
मेरे अलावा बाकी सब तो उनसे छोटा ही है। तो फिर उस उम्र में अगर गुरु महाराज कर सकते हैं, उस शारीरिक स्थिति में अगर गुरु महाराज कर सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? प्रभु डिफरेंस ये है कि उनको सारे श्लोक मुखस्थ हैं, हम लोग को तो एक भी नहीं है, एक भी याद करने में जीवन निकल जाएगा। उनको तो सब मैं याद है। दायित्व ले रहा हूँ ना, उसके लिए मैं दायित्व ले रहा हूँ। जैसे भक्ति शास्त्र में सब प्लान वैन करके सब कुछ टीचर वीचर रख के सब कुछ कराया ना, यहाँ भी वैसे ही रहेगा, यहाँ भी वैसे रहेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है कि सब पास करें, आपका जिम्मेदारी है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करें, और मेरा जिम्मेदारी है कि सब पास करें। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसका दायित्व ले रहा हूँ। मैं जो भी हो सके, क्योंकि मैं खुद भी करूंगा, तो मैं जो भी हो सके सब आयोजन करने का प्रयास करूंगा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो वो बारकोड दिया है, पेमेंट करिए, सब ज्वाइन करिए। कल भी कुछ भक्त लोग पेमेंट किया, ज्वाइन कर लिए। शुभस्व शीघ्र, शुभ कार्य के लिए कभी वेट नहीं करना चाहिए। और शुभस्व काल। प्रभु मैंने अपने प्रभु जी से भी पूछा, खुद भी ना बारकोड का पॉसिबल है ना उनके फोन में ना मेरे फोन में। दे दिया था अभी बारकोड, कल रात को जो दिया वो ठीक कर दिया। महाराज प्रभु का बारकोड एक्सपायर हो गया था, फिर बाद में और एक बारकोड दिया है, वो भी ठीक है। मैं क्लास के बाद निर्मला माता जी फिर से एक बार भेज दीजिएगा। ओके, अच्छा मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे प्रभुपाद ख्याति के लिए गए थे, ये कौन बताया इस पैराग्राफ? के लिए गया था। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपने उनके गुरु भाई लोग विदेश में गया, जाकर घूम के आकर इस ख्याति के लिए गया था कि बोलेगा सब फॉरेन रिटर्न प्रचारक होता है ना, फॉरेन থেকে ঘুরে এসেছে। ओ हरि बोल, कितना महान व्यक्ति। वैसे किंतु क्या प्रचार किया तो कोई किसी का सबूत तो है नहीं। कोई थोड़ी जाएगा, कोई बोलेगा उधर हमने 10 सेंटर खोला, तो कोई जाएगा थोड़ा देखने उधर, सचमुच अमेरिका में चलो तो देखने जाते हैं कितना कौन कौन सेंटर खोला। ओके, सोचिए तो क्या कलयुग आ गया। एक भक्ति वैभव कोर्स लोगों को कराने के लिए क्या क्या तरकीब सोचना पड़ रहा है। हर एक दिन 10 डायलॉग देना पड़ रहा है क्लास के बीच में। और कलयुग, अच्छा चीजों के लिए कोई स्वेच्छा से नहीं करेगा। अगर कुछ ऐसे डायलॉग नहीं देंगे ना तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। यस प्रभु, यस ठीक बोले, हम जैसे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सुन के उत्साह बढ़ता है ना, सब सुन सुन के तब मन करता नहीं, करना चाहिए करना चाहिए, गुरु महाराज की हमें भी करना चाहिए। किसी को भूख ही नहीं है, और इंजेक्शन देके भूख खिलाना पड़ रहा है लोगों को। अगला श्लोक 13 नंबर। अच्युतानंद बड़ो शाखा आचार्य नंदन, अच्युतानंद बड़ शाखा आचार्य नंदन, आजन्म से बिलाते हो चैतन्य चरण, आजन्म से बिला दे हो चैतन्य चरण, चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती, चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती, এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি, এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি, জগৎ গুরুতে তুমি করো ওইছে উপদেশ, जगत गुरु ते तुम्ही करो ऐसे उपदेश, তোমারও এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ, তোমারও এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ, 14 ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাই, 14 ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাই, তার গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই, তার গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই, পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার, पंचम वर्षे बालक कहे सिद्धांते सार, শুনিয়া পাইল আচার্য সন্তোষ অপার। दुनिया पाइलो आचार संतोष अपार। তো অদ্বৈত আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ একটি বড় শাখা হচ্ছেন তার পুত্র অচ্যুতানন্দ। তিনি তার জন্মের প্রথম থেকেই শ্রী चैतन्य महाप्रभु श्री पादपद्मेर सेवाয় যুক্ত ছিলেন। अरे बोल, बचपन से ही। और जब 5 साल के थे तो क्या बोला था अच्युतानंद, ध्यान से सुनिए। অচ্যুতানন্দ যখন তার পিতার কাছ থেকে শুনলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু হচ্ছেন কেশব ভারতী, यानी उनसे संन्यास लिया, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। 5 साल का बालक दुखित हो गया। কেন? কিন্তু তিনি তার পিতাকে বলেছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন জগৎ গুরু, আর তুমি বলছো যে কেশব ভারতী হচ্ছেন তার গুরু।
এই উপদেশ দিয়ে তুমি সমস্ত দেশকে বিभ्रांत করছো। कैसे विभ्रांत होगा? क्योंकि लोग सोचेगा केशव भारती महाप्रभु का गुरु है तो केशव भारती बड़ा हो गया ना। गुरु बड़ा होता है या चेला बड़ा होता है? गुरु बड़ा होता है। गुरु बड़ा तो बोले भाई महाप्रभु साक्षात भगवान, आप बोल रहे केशव भारती महाप्रभु का गुरु माने भगवान का गुरु, तब तो भगवान का कम हो गया ना, लो हो गया ना, गुरु महान हो गया। ऐसे करके छोटा 5 साल का बालक अपने पिता अद्वैताचार्य को बोल रहे। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন চতুর্ভুবনের গুরু, কিন্তু তুমি বলছো যে অন্য কেউ হচ্ছেন তার গুরু। কোন শাস্ত্রে এইরকম কথা নেই। सोचिए पुत्र पिता को बोल रहे हैं, पिता भी कितना महान पिता है, सोचिए साक्षात भगवान महाविष्णु के अवतार। অদ্বৈত আচার্য প্রভু তার 5 বছরের পুত্র অচ্যুতানন্দের মুখে সমস্ত সিদ্ধান্তের সারমর্ম শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। तो आपको आप में से किनको किनको लगता है कि ये 5 साल का बालक सही बोल रहा है? गूगल हाथ उठाइए। सही बोल रहा प्रभु जी। एकदम गलत। 5 साल को भगवान तो गुरु लेते ही है। भगवान गुरु नहीं स्वीकार किया रामचंद्र रूप में, कृष्णचंद्र रूप में, तो गुरु स्वीकार करते। इससे थोड़ी, इसका मतलब थोड़ी कि गुरु बड़ा हो गया। अरे लीला करने के लिए तो करना पड़ता है। हाँ लेकिन ছোট বাচ্চা এই জন্য তার এই জ্ঞানটা ছিল না। হ্যাঁ, কিন্তু তার ছোট বাচ্চাটা এই জিনিসটা বলছে কারণ কি তার মানে তার চৈতন্য মহাপ্রভুর উপর কত নিষ্ঠা যে তার মন খারাপ হয়ে গেছে এটা শুনে। তো এই জিনিসটা শুনে তার পিতা খুব খুশি হলো। আরে বাবা, এত 5 বছরের ছেলে এত কিছু বলছে महाप्रभु। सिद्धांत की बाहर है ना प्रभु। ये जो गुरुकुल का सिद्धांत है उस हिसाब से तो आउट ऑफ नॉलेज हो गया। है कि कोई भी होगा तो श्रेष्ठ होना चाहिए, जैसा गुरु वैसा चेला कह दिया जाता है। लेकिन गुरु की नजर से देखने से शिष्य को भी उसी नजर से देखा जाएगा, इसलिए लोग छोटा समझेंगे। मायावादी भी थे ना? कौन मायावादी थे? केशव भारती। हाँ वो उसका बात नहीं, लेकिन वो पोर्शन वो वाला एंगल से मत देखिए इसको। अभी तक उल्लेख नहीं हुआ। आप सही बोल रहे हैं, वो वाला एंगल अभी उल्लेख नहीं हुआ। यही उल्लेख हो रहा है कि अरे जगत गुरु का गुरु हो सकता है। महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण जगत गुरु का गुरु हो सकता है। अरे हाँ हो सकता है, लीला के लिए होता है। लेकिन 5 साल का बालक वो क्या समझेगा? 5 साल का बालक यही बोल रहा है, यही बड़ी बात है। आप लोग 5 साल में क्या करते थे? हम लोग क्या करते थे 5 साल में? ये सब कुछ हम लोग का दिमाग में आया था? कभी नहीं। 5 साल में हम लोग खेल कूद और व्हाट्सएप नहीं, वीडियो गेम वही खेलते थे हम लोग। खाना और खेलना पड़े प्रभु जी हम लोग 5 साल में। तो ये इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सब सुन के अद्वैताचार्य को अच्छा लगा। हालांकि लड़का सही नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। অদ্বৈত আচার্য প্রভু তার 5 বছরের পুত্র অচ্যুতানন্দের মুখে সমস্ত সিদ্ধান্তের সারমর্ম শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাৎপর্য এই পরিচ্ছেদের 13 থেকে 17 শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অদ্বৈত আচার্যের বংশধরদের এক বিস্তৃত বর্ণন দিয়েছেন। চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে অচ্যুতানন্দ ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অদ্বৈত চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে অদ্বৈত আচার্য অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল দাস নামক 3 পুত্র ছিল। अभी अशोक प्रभु मत पूछिए कि एक लड़का का टाइटल मिश्र है, दूसरे का ये है, वो कैसे है। तारा সকলেই सीता देवी गर्भे, सीता देवी माने सीता माता उनका पत्नी है ना अद्वैताचार्य का, उस हिसाब से सीता देवीर गर्भे जन्मग्रहण করেছিলেন এবং তারা সকলেই ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত। বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ নামক অদ্বৈত আচার্যের আরো 3টি পুত্র ছিল। টোটাল 6 পুত্র। এইভাবেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর 6টি পুত্র। এই 6 পুত্রের মধ্যে 3 জন ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্ঠাবান অনুগামী এবং তাদের মধ্যে
अच्युतानंद ही छिलेन ज्येष्ठ। बाकी 3 के बारे में कुछ बोला नहीं, देखिए, ठीक ना। तो इसका मतलब उन लोग शायद डिवोटी नहीं थे। ये उनके संतान कैसे हुए प्रभु? ये उनके संतान नहीं हो सकता अद्वैताचार्य का। আরেকজন ওয়াইফ ছিল। দুজন that বিবাহিত means they were not children of Sita Devi. सीता माता के सिर्फ 3 ही बेटे थे, the way it is written here, right? प्रभु ইন্দ্রাণী মাতাজি কি করে বুঝলেন তার সীতা মাতার গর্ভে? যদি এরকম আগে এসছে, দুজন ওয়াইফের নামও আছে, হয়তো পড়তে পড়তে পেয়েও যাবেন এই চ্যাপ্টারে। आगे পড়েছিলাম না, এই থেকে বলছিলাম। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं, हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन ये तो क्लियर है कि 6 पुत्र अद्वैताचार्य का था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। तो 3 को बोल रहे डिवोटी है, तो बाकी 3 के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। अगला पैराग्राफ, पंचदश शताब्दीर प्रथम दिके अद्वैत आचार्य प्रभुर विवाह है, माने 1500 समथिंग। हाँ, माने उस समय महाप्रभु का उम्र कितना था? महाप्रभु का 1486, तो अराउंड 14 साल ऐसे कुछ उम्र। तो उस समय अद्वैताचार्य का মানে অনেক বয়সে বিবাহ হয়েছে না, তাহলে অনেক বয়সে বিবাহ হয়েছে, এতে মানে বোঝা যাচ্ছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন 1433-34 শতাব্দে অচ্যুতানন্দর বয়স ছিল মাত্র 5 বছর। अच्छा, बंगाब्द शकाब्दर कथा बोला हচ্ছে 1433। शकाब्द में महाप्रभु का जन्म कब हुआ था दिलीप प्रभु? 1434 1407 ना? हाँ 1407 ना, हिरण्मय प्रभु कलाया था ना, लोग किया था। हाँ 1407 1407। तो अच्युतानंद का कब जन्म हुआ? जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे 1433 में। तो इससे तो पता चलता है कि अद्वैताचार्य का पुत्र बहुत माने उम्र में हुआ, बहुत उम्र में हुआ। श्री चैतन्य भागवतेर अंतखंडेर 4th अध्याये अच्युतानंद सम्बन्धे बर्णना करे बला हयेछे 5 वर्ष बयस मधुर दिगम्बर। सुतरां अच्युतानंद 1428 शताब्दे जन्मग्रहण करें। समझ में आया? 1433 - 5 तो 1428 हो गया। क्लियर? अच्युतानंदेर जन्मेर पूर्वे महाप्रभु जन्मेर समय अद्वैत प्रभुर पत्नी सीता देवी महाप्रभु के देखते एसेছিলেন। সুতরাং 21 বছরের মধ্যে তার আরো 3টি পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা নিছক कल्पना নয়। माने और 3 पुत्र इसके बाद हुआ, माने महाप्रभु का जन्म के बाद माने इनका और 3 हुआ। नित्यानंद दायिनी नामक একটি অপ্রামাণিক পত্রিকায় 1792 শতাব্দে সীতা অদ্বৈত চরিত নামক একখানি বাংলা গ্রন্থে অচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সহপাঠী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সহপাঠী, সহপাঠী মানে একই বয়সের মধ্যে না, সহপাঠী সেম সঙ্গে পড়তেন, একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন। अच्छा, क्योंकि 5 साल का ही तो उम्र का डिफरेंस है। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बोल रहा, 5 साल का नहीं। कैसे 5 साल का होगा? तो ये 1428 में जन्म लिया, महाप्रभु 1407 में लिया, माने 21 साल का डिफरेंस। 21 साल का, वही। हाँ, श्री चैतन्य भागवते वर्णना अनुसारे सेटी संपूर्ण बाजे कथा, ठीक ना? बाजे कथा ही तो एक साथ कैसे 21 साल का अगर अंतर है दोनों का उम्र में, तो दोनों सहपाठी कैसे हो सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে अद्वैत आचार्य प्रभुर गृहे आसेन, तखन 1431 शताब्द। समझ में आया ना? 24 साल में महाप्रभु ने सन्यास लिया था और 1407 में महाप्रभु जन्म लिया, तो 1407 + 24 साल कितना होता है? 1431। हाँ, यस, हिसाब मिल रहा है?
সেই সময় अच्युतानंदेर 3 বছরের शिशु। कैसे 3 बच्चर हुआ? क्योंकि 1428 में उनका जन्म हुआ, 1431 में महाप्रभु उनके घर पे आए, तो 3 साल ही हुआ ना, 28 से 31। श्री चैतन्य भागवते वर्णना करा হয়েছে যে অদ্বৈত आचार्य प्रभुর दिगंबर शिशुपुत्र, दिगंबर का छोटा बच्चा, वो सब उस समय सब दिगंबर ही रहता था, ठीक ना? গ্রামে ঠামে সব ছোট বাচ্চা এরকম দিগম্বরই থাকে, শার্ট প্যান্ট পরে থাকে না। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে এসে পতিত হয়, তখন যদিও তার সারা গায়ে ধুলো লেগেছিল, তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে কোলে তুলে নেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, অচ্যুত আচার্য মোর পিতা, সে সম্বন্ধে তোমায় আমার দুই ভ্রাতা। 18। नहीं, तात्पर्य के बीच में है। नवद्वीपे भगवत स्वरूप प्रकाश करार पूर्वे श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्यকে নিয়ে আসার জন্য শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতা শ্রী রাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। আচ্ছা, চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন এটা কি মানে, এটা দেখতে হবে একটু। অচ্যুত आचार्य मोर पिता। ओ, तो महाप्रभु बच्चे को लेकर क्या बोला था, ध्यान से सुनिए। अच्युत 3 साल का बच्चे को बोल रहा है कि आचार्य मोर पिता, माने तुम्हारा पिता मेरा पिता है, माने अद्वैत आचार्य मेरा पिता है, पिता के समान। तो अगर अद्वैत आचार्य पिता के समान है तो अच्युताचार्य और महाप्रभु क्या हो गया, भाई 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 दोनों भाई हो गए। तुम्हारे আমায় দুই भ्राता, उस संपर्क में तुम और मैं दोनों भाई हो गया, ऐसे करके जोकिंगली बोला होगा। নবদ্বীপে ভগবত স্বরূপ প্রকাশ করার পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে নিয়ে আসার জন্য শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতা শ্রী রাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। ठीक है, जाओ जाकर अद्वैत आचार्य को लेकर आओ, ऐसे श्री राम पंडित को भेजा। তখন अच्युतानंदेर पितार संगे যোগ দিয়েছিল, মানে अच्युतानंद भी पिता के साथ आया था। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, অদ্বৈতের তনয় अच्युतानंद नाम परम बालक सेह कांदे অবিরাম। হ্যাঁ বলিয়ে প্রভুজি, এই যে আগে বলেছে না নবদ্বীপে ভগবত স্বরূপ প্রকাশ, এইটার মানে কি ভগবত স্বরূপ মানে ওই সন্ন্যাসের কথা বলছেন কি না? सात्विक भाव माने प्रभु जी इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा है, should I read? Before Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his spiritual forms during his residence at Navadvip, because initially he was not has a spiritual mainly dikta সন্ন্যাস নেওয়ার পর। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম পরম বালক সেহ কান্দে অবিরাম। यस अद्वैत प्रभु। प्रभु यहाँ पे जो पिता कह के बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अच्युतानंद को, नहीं अच्युतानंद को नहीं, अद्वैताचार्य को। नहीं अद्वैताचार्य को, लेकिन उनको गोद में उठाकर उनको कहते हैं कि आपके पिता मेरे पिता हैं। हाँ। तो ये कारण भी तो हो सकता है कि महाप्रभु का यहाँ पे अवतरण होने का कारण यही था, अद्वैताचार्य की वजह से आए थे। हरि बोल। इस वजह से भी तो कह सकते हैं। यस व्हाई नॉट। हाँ প্রভুজি, আর একটা আছে ওনার সঙ্গে বয়সের অনেক ফারাক ছিল অদ্বৈতাচার্যের। करेक्ट, पिता के उम्र के समान। यस। আবার অদ্বৈত প্রভু যখন ভক্তির বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং মহাপ্রভু তাকে প্রহার করেছিলেন, তখনও अच्युतानंद वर्तमान ছিল। ये तो मालूम है ना ये लीला कि अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु हमेशा उनको दंडवत करते थे, सम्मान करते थे, पितृ तुल्य उनको सम्मान करते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य को मालूम है कि साक्षात भगवान है, भगवान मेरे को सम्मान कर रहा है, तो उनको अनकंफर्टेबल लगता था। इसलिए अद्वैताचार्य ने क्या एक आइडिया किया था, जाकर मायावादी के ग्रुप में जाकर प्रचार करने लगा, और
और जब महाप्रभु को ये सुनने को मिला, क्या अद्वैताचार्य मायावाद प्रचार कर रहे हैं, और महाप्रभु गुस्से में वहां गया, अद्वैताचार्य को पकड़ के धक्का उक्का दिया, शायद पटक दिया ऐसे कुछ। और अद्वैताचार्य का स्त्री सीता देवी रो रहा था, ए बुरा मारा जाए, अरे बुरा मारा जाए, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि उस समय छोटा पुत्र अच्युतानंद भी वहां उपस्थित थे। क्लियर? সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের 2-3 বছরের পূর্বে ঘটেছিল। এই তো হজম নেই हुआ। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে অচ্যুত প্রণাম করে করে অদ্বৈত তো নয়, অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তো নয়। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে অচ্যুতানন্দের জন্মবুদ্ধি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর भक्त छिलेन, माने बचपन से ही छोटा बालक महाप्रभु का भक्त थे, इससे यही समझ में आता है। लेकिन ये लाइन हमको हजम नहीं हुआ कि সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের 2-3 বছর পূর্বে ঘটেছিল। एक तो बोल रहा है कि महाप्रभु भक्त ऑलरेडी बन गए थे, भागवत माने ऑलरेडी ही वाज अ भगवत स्वरूप प्रकाश করা। আবার তারপরে বলছে যে 2-3 বছর পূর্বে, সন্ন্যাসের 2-3 বছর পূর্বে তো মহাপ্রভুর ওই মানে व्याकरण टीचर वाला उनका रूप था ना, ये हजम नहीं हुआ। हिरणमय गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार उनको जो जो श्री राम पंडित नाकिश को भेजे थे ले आने के लिए, उसी टाइम का बारे में बोल रहे हैं। तो तब दीक्षा का 2-3 साल पहले है। जो दीक्षा का 2-3 साल पहले वो तो विद्यार गौरव छिलेन महाप्रभु। Was he did he manifest his godly nature? Godly nature तो manifest हुआ था ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद। हाँ, ये तो और आगे भी दीक्षा लिए। वहाँ जो दीक्षा लिए है वो तो 24 साल नहीं थे, वो तो 20 साल ऐसे होगा दीक्षा लिए थे। तो उसका बाद 21 साल। अच्छा, आप बोलना चाह रहे हैं ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद और संन्यास लेने के बाद? हाँ, उसका बाद वो जो खटली था उधर बैठ गया, तो महाप्रभु 21 घंटा का जो महाभाव उनका प्रकाश हुआ था उस टाइम का बारे में। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, गुड बी, यस यस यस। अच्छा, आप बोलना चाह रहे हैं वो महाप्रकाश लीला के समय, उस समय उसी टाइम में। यस यस यस, परफेक्ट, एकदम सही बोला। ओके, आगे पढ़ते हैं। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তো নয়। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে অচ্যুতানন্দের জন্মবুদ্ধি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। অচ্যুতানন্দ কখনো বিবাহ করেছিলেন? हाँ, बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महाप्रकाश लीला क्या संन्यास लेने से पहले हुआ था? हाँ, महाप्रकाश लीला में आप देखा महाप्रभु का बाल है, घुंघरालू बाल, देखा? हाँ या ना? हाँ जी जी जी, है। अरे इसका मतलब संन्यास लेने के तुरंत निकल गया बाहर पुरी में। देखिए संन्यास कब लिया? संन्यास लिया, मैंने उस दिन तो बताया था ये बात। संन्यास लिया 14 जनवरी के आसपास, वो मकर संक्रांति के, कोई बोलता मकर संक्रांति, और उस साल एक्चुअली मकर संक्रांति और माघी पूर्णिमा दोनों एक ही दिन में हुआ था। एक ही दिन था। हाँ। वो 14 जनवरी के आसपास महाप्रभु ने संन्यास लिया। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, उसी साल महाप्रभु पुरी निकल गया, माने, और रथ यात्रा के आगे दक्षिण भारत निकल गया। रथ यात्रा कब होता है? जून जुलाई। तो रथ यात्रा के आगे निकल गया पुरी से, माने सोचिए जून या मई महीना में निकल गया दक्षिण भारत हमारे लिए। ठीक है, तो जनवरी में संन्यास हुआ, मई महीना में पुरी से निकल गया दक्षिण भारत के लिए। तो इस बीच में तो पुरी नहीं गया, सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किया, उस बीच में तो होता है ना ये सब। हाँ। तो महाप्रकाश लीला उसके आगे ही हुआ, उसके पहले हुआ जी। थैंक यू। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, महाप्रभु पहले साल जब पुरी में गया था उस साल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ठहरा नहीं, निकल गए थे दक्षिण भारत भ्रमण के लिए। डोंट फॉरगेट दिस, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा।
यस बोलिए बोलिए माता जी। ওকে, অচ্যুতানন্দ কখনো বিবাহ করেছিলেন, কখনো বিবাহ করেছিলেন এইরকম কোনো বর্ণনা কোথাও নেই। কখনো বিবাহ করেছিলেন এরকম বর্ণনা কোনো নেই। তাকে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর সবচাইতে বড় শাখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। कि किनका अवतार थे, आया था ना अच्युतानंद, कल आया था ना, गर्भदक्षा विष्णु ना किनका अवतार थे, क्षीरोदक्षा विष्णु अवतार ना, ऐसे कुछ आया था, याद है किसी को? প্রভু সে তো বীরভদ্র গোসাই, अच्छा, ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণুর অবতার ছিল। শাখা নির্ণয়ামৃত নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে অচ্যুতানন্দ ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং তিনি জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে ভগবত সেবা করেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদ থেকেও জানা যায় যে অদ্বৈত আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করে ভগবত সেবা করেছিলেন। গদাধর পণ্ডিত তার শেষ জীবনে জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেছিলেন। তাই অচ্যুতানন্দ যে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। রথযাত্রার অনুষ্ঠানের সময় রথাগ্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্যের সময়কার বর্ণনায় অচ্যুতানন্দের নামও কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আদিলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, শান্তিপুরে আচার্যেরও এক সম্প্রদায়, অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা আর সব গায়। সেই সময় অচ্যুতানন্দের বয়স মাত্র 6 বছর। শ্রী কবি কর্ণপুর প্রণীত গৌর গণেশ দীপিকায় অচ্যুতানন্দকে গদাধরের শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। लेकिन किनके अवतार लिखा नहीं है ना। কারোর কারোর মতে তিনি হচ্ছেন শিব ও পার্বতীর পুত্র কার্তিকের অবতার, হরি বল। এবং অন্য কারোর মতে তিনি হচ্ছেন অচ্যুতা নামনি গোপী। ठीक है, क्विज में आ सकता है। कार्तिक का अवतार कोई बोल रहा है अच्युता नामनी गोपी। গৌর গণেশ দীপিকায় এই দুইটি মতেরই সমর্থন করা হয়েছে। नरहरि दास रचित नरोत्तम विलास नामक ग्रंथे, ये बुक भी हमको खरीदना है, ये मिलेगा कहाँ भगवान जाने। श्री अच्युतानंदेर खेतुरी महोत्सवे आगमन माने नरहरि दास रचित, नरहरि दास चक्रवर्ती प्रभु, नहीं, भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर लिखा। नरहरि दास माने হচ্ছে नरहरि आरती गौर आरती। नरहरि दास रचित नरोत्तम विलास नामक ग्रंथे श्री अच्युतानंदेर खेतुरी महोत्सव আগমন এবং যোগদানের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ওকে, হ্যাঁ বলুন প্রভু। নরহরি সরকার আর নরহরি দাস কি এক না আলাদা? যে গৌরীদাস কুণ্ডের সেবক ছিলেন নরহরি সরকার তো, হ্যাঁ আরে এখনই তো সেটাই তো বললাম, কীর্তন তো গাইলাম যে কোনটা নরহরি সরকার। নরহরি সরকার হচ্ছে যে মহাপ্রভুর পার্ষদ, আর নরহরি চক্রবর্তী তো অনেক পরবর্তীকালে যে ভক্তি রত্নাকর। না, নরহরি সরকার যে ছিল উনি গৌরীদাস কুণ্ডের ছিল সেবক ছিলেন, ওই এক নাকি সেটা আমি জানতে চাইলাম আর কি রকম। আগে অদ্বৈত আচার্য ओके, नरहरि दास रचित नरोत्तम विलास नामक ग्रंथे ये नरहरि दास जो है ना दिलीप प्रभु, ये नरहरि चक्रवर्ती होगा। हाँ, या तो नरहरि चक्रवर्ती होगा या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति होगा, क्योंकि हिरण्मय गौरांग प्रभु अच्युतानंदेर खेतुरी महोत्सवेर आगमने माने नरोत्तम विलास नरोत्तम दास ठाकुरेर ব্যাপারে লিখছেন, তার মানে তো এটা নরহরি সরকার হতেই পারে না, কিন্তু নরহরি সরকার তো মহাপ্রভুর জেনারেশনে। या तो नरहरि चक्रवर्ती होगा जिन्होंने भक्ति रत्नाकर लिखा, या कोई तीसरा व्यक्ति होगा नरहरि दास नामक।
यस हाँ, जो लिखा है वही होगा। तो वही होता तो फिर नरहरि चक्रवर्ती लिख देता ना प्रभुपाद जी नरहरि दास लिखा है क्यों? एनीवेज नरहरि আমার মনে হয় নরহরি চক্রবর্তী হবে। নরহরি দাস রচিত নরোত্তম বিলাস নামক গ্রন্থে শ্রী অচ্যুতানন্দের খেতড়ি মহোৎসব আগমন এবং যোগদানের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শ্রী নরহরি দাস বর্ণনা করেছেন যে লিখিত দাসই লিখ रहे हैं শেষ জীবনে শ্রী অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে তার বাড়িতে বাস করতেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনি গদাধর পণ্ডিতের প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে বাস করতেন। क्लियर या बोली प्रभु? भक्ति रत्नाकर में तो बहुत वर्णन है खेतरी उत्सव का, है ना प्रभु? हम लोग पढ़े थे। অদ্বৈত আচার্য প্রভুর 6 পুত্রের মধ্যে 3 জন অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল দাস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। हाँ बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। प्रभु यहाँ पर किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट काले, जो प्रकट काले ना अप्रकट काले? हाँ, प्रकट काले তিনি गदाधर संगे ছিলেন पुरी में। जब महाप्रभु थे तब गदाधर पंडित के साथ पुरी में थे। जब महाप्रभु लीला समाप्त किया तो वो शांतिपुर आ गया। तो महाप्रभु वहां से ये हो गए तब ना, अप्रकट हो गए तब तो नहीं, प्रकट काले वो तो ठीक ही लिखे थे। महाप्रभु प्रकट काले তিনি गदाधर पंडितेর সঙ্গে জগন্নাথপুরতে বাস করতেন, ঠিকই है। तो प्रकट काले तो मतलब हो गया कि जन्म ग्रहण किए? नहीं, प्रकट काले माने जब लीला कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। सुदामाई वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, नेट पे तो दिखा रहा है श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर थे, नरोत्तम विलास के लेखक। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैंने नरहरि सरकार नहीं, नरहरि सरकार तो महाप्रभु का पार्षद, वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में लिखेगा? नरोत्तम दास ठाकुर तो नेक्स्ट जनरेशन हो गया ना। नित्यानंद प्रभु के अवतार है नरोत्तम दास ठाकुर। और श्रीनिवास आचार्य किनका अवतार है? गौरांग महाप्रभु का। महाप्रभु महाप्रभु। और श्यामानंद पंडित किनका अवतार है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य। ये 3 फ्रेंड्स। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? टाइम भी हो गया। करेगा ये पैराग्राफ? कर लेते हैं। देखो टाइम हो गया, टाइम हो गया। काउट पिन दीजिए माता जी, तब तक करते हैं। अद्वैत आचार्य आज राजीव प्रभु काउट बनाए हैं। हरी हरी बोल। राजीव प्रभु काउट पिन दे दीजिए प्लीज। कल राजीव लोचन प्रभु का बहुत सुंदर क्लास हुआ, वेरी नाइस। हरि बोल। हाँ प्रभु, हमने देखा है। वेरी गुड कंटेंट, वेरी गुड कंटेंट। अद्वैत आचार्य राजीव प्रभु हम लोग का भी क्लास लेते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास लेते हैं 8 बजे। हरि बोल। क्या चल रहा है? भगवत गीता चल रहा है? नहीं, रसराज श्री कृष्ण प्रभु पूरा, मतलब जो प्रभुपाद का पूरा सीरियल ही करा रहे हैं, पूरा बुक। अच्छा, स्मॉल बुक्स। हरि बोल, वेरी नाइस। आज सनातन प्रभु जी का टेम्पल में। आज सनातन मुकुंद प्रभु का है क्या क्लास? नहीं, सनातन कृष्ण प्रभु आचार्य संजय बत्रा प्रभु का क्लास है। हाँ हाँ, वही तो बोला। और कल भागवतम है हमारे पंकज नेत्र राजेश प्रभु का। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, कहाँ थे हम लोग? শ্রী অচ্যুতানন্দ যেহেতু বিবাহ করেননি, তাই তার কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। अभी अच्युतानंद के बारे में इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि बताया गया ना कि सबसे अद्वैताचार्य का सबसे बड़ा शाखा कौन था? ये अच्युतानंद, इसीलिए इतना डिटेल दे रहे हैं। श्री अद्वैत आचार्य प्रभुर द्वितीय पुत्र कृष्ण मिश्रेर रघुनाथ चक्रवर्ती और दोल गोविंद नामक 2 पुत्र ছিল। वाह, कितना सुंदर नाम, दोल गोविंद। রঘুনাথের বংশধরেরা এখনো শান্তিপুরের অন্তর্গত মদন গোপাল পাড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গণগড়, মির্জাপুর ও কুমারখলিতে বাস করেন। দোল গোবিন্দ, চাঁদ, কন্দর্প ও গোপীনাথ নামক 3 পুত্র ছিল। কন্দর্পের বংশধরেরা মালদহের জিকাবাড়ি গ্রামে বাস করেন। গোপীনাথের শ্রী বল্লভ, প্রাণবল্লভ ও কেশব নামক 3টি পুত্র ছিল। শ্রী বল্লভের বংশধরেরা মসিয়া ডারা
বা মহিষ ডেরা, দামুক দিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শ্রী বল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ থেকে তাদের বংশ তালিকা রয়েছে। শ্রী বল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপালের বংশধরেরা এখন দামুক দিয়া, চণ্ডীপুর, ষোলমারি প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশধরেরা উথলিতে বাস করেন। প্রাণবল্লভের পুত্র ছিলেন রত্নেশ্বর, তার পুত্র ছিলেন কৃষ্ণ রায় এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। তার পুত্র ছিলেন নবকিশোর এবং নবকিশোরের দুটি পুত্রের নাম রামমোহন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন জগবন্ধু। তার তৃতীয় পুত্র বীরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং কাটোয়ায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহনের এই দুই পুত্র বড় প্রভু ও ছোট প্রভু নামে পরিচিত ছিলেন এবং তারা শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার প্রবর্তন করতেন। प्रवर्तन करते माने क्या, एडवर्टाइज करते थे? प्रवर्तन का क्या है? परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा ऑर्गेनाइज करते हैं। परिक्रमा परिक्रमा अरे परिक्रमा परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा प्रवर्तन करते हैं, अर्थ की And they inaugurated the circumambulation of inaugurated, okay, inaugurated. শ্রী কৃষ্ণ মিশ্রের ধারায় অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বংশ তালিকা বৈষ্ণব মঞ্জুষা নামে গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই বৈষ্ণব মঞ্জুষা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কথা না, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী তবে বল হরি হরি। গোস্বামী কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ।